Jai Hind students. Students, for the calculation of goodwill under super profit method, I am going to take up two more questions, and this is now 25th question of T.S. Garewal volume 1. It is average net profit expected in future by XYZ firm is rupees 36,000 per year. Average capital employed in the business by the firm is rupees 2 lakh. The normal rate of return from capital invested in this class of business is 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. अब इस question में you can easily see that it is clearly given that goodwill is to be calculated on the basis of super profit. So for this what we require is, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, super profit चाहिए. super profit के लिए हमें क्या चाहिए, average profit, और साथ में हमें क्या चाहिए, normal profit. ठीक है. Average profit is already given in the very first sentence. Average net profit expected is 36,000 per year. Average profit आपके सामने है मगर normal profit आपके सामने नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, normal profit calculate करेंगे. Question number 25. Average profit is equal to हाँ, एवरेज प्रॉफिट इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, 36,000 आपको दे रखा है, मगर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और आ गई है और वो है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स. तो वो 6,000 रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे हम. ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000 का. अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो गिवन 10%. तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000. So when average profit you have calculated, normal profit you have calculated, so what will be the super profit? It is average profit minus normal profit, that is 30,000 minus 20,000, rupees 10,000. तो goodwill कितनी होगी, super profit into number of years purchase, 10,000 into 2, that is 20,000. Is it clear now? Okay. Now I'm going to take up one more question, and this is a bit bigger one. Question number 28. Ideal Marketing earned an average profit of rupees 4 lakh during the last 5 years. Normal rate of return on capital employed is 10%. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follows. Liabilities, capital accounts, Shyam, Sundar. Current accounts, I am not going to read the amount. Okay, so I am going to read only the items of the balance sheet. Current accounts are also given, Shyam, Sundar. Reserves, sundry creditors, bills payable, outstanding expenses. Assets, land and building, furniture, investments, sundry debtors, bills receivable, closing stock, cash in hand, cash at bank. Calculate the value of goodwill if it is valued at 3 years purchase of super profits. Again it is very clearly given कि super profit method से आपको goodwill calculate करनी है. Now super profit method से goodwill calculate करनी है, काफ़ी बड़ा सा सम है, बैलेंस शीट आपको सामने दिखाई दे रही है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अब अप्रोच ढूंढेंगे, हम कौन सी लगा सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच. अब यहाँ पे क्योंकि बैलेंस शीट दे रखी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. ठीक, हम गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ये लिख के इसको छोड़ देंगे. ये मैंने बाद में ही कैलकुलेशन सारी करने के बाद ये अमाउंट लिखे हैं. अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले सेंटेंस में 4 लाख रुपीज़. नाउ कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा या तो हम एसेट साइड अप्रोच ले लें या फिर हम लायबिलिटीज साइड अप्रोच ले लें. तो हम एसेट साइड अप्रोच भी लेके आपको दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड अप्रोच भी लेके दिखाएंगे. एसेट साइड अप्रोच कहती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स. इस क्वेश्चन में मैं खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ना तो गुडविल है ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट है. ठीक है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़. अब इस क्वेश्चन में मैं वापस आ रही हूँ बुक में. ऑल एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि एसेट्स का टोटल हमारा कितना है. एसेट्स का टोटल है हमारा 23 lakhs.
क्लियर नहीं था, अब क्लियर हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसेट्स का टोटल कितना है आपका 23 lakhs। अब वहाँ पे आपको क्या हटाना है, एक्सक्लूड करना है आपको इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो हम उसे क्या मानेंगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी है 1 लाख रुपीज़ की, तो ऑल एसेट्स का टोटल है 23 lakhs। इसमें से हमें हटाना क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख रुपए की है, तो ऑल एसेट्स का टोटल आ गया हमारा 22 lakhs। ठीक है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब आउटसाइड लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज़ मीन्स जो बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। साफ दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ बन रही हैं और इनका अमाउंट है 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000, यानी 5,60,000 आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ बन रही हैं। आ जाइए यहाँ पे, ऑल एसेट्स 22 lakhs माइनस 5,60,000 आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़, तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 16,40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू अपॉन 100। ठीक है, तो 16,40,000 इंटू 10/100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,64,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट अब कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 lakhs। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपने कैलकुलेट किया, 1,64,000। अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया है नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया 2,36,000। ठीक है, अब जो ऊपर आपने गुडविल का फॉर्मूला लिखा था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो सुपर प्रॉफिट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आया था आपका, 2,36,000 आया था। यही 2,36,000 यहाँ पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट में, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3, तो गुडविल आ गई आपकी 7,08,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट और उठता है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड इसी क्वेश्चन में लायबिलिटीज साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट किया जा सकता था? यस, आंसर भी सेम ही आएगा। लायबिलिटीज साइड अप्रोच क्या कहती है कि कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ एनी इन द बुक्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कैपिटल। कैपिटल हमारा ये रहा, दोनों का मिला के है 10 लाख प्लस करंट अकाउंट्स कितना हो गया 4 lakhs, यानी टोटल कैपिटल हो गया हमारा 14 lakhs प्लस रिजर्व्स कितना है 3,40,000। ठीक है, तो यानी कैपिटल प्लस रिजर्व हो गया हमारा 17,40,000। अब ये जो 17,40,000 है, इसमें से आपने क्या क्या माइनस करना है, गुडविल इफ़ एनी इन द बुक्स, गुडविल एसेट्स में है नहीं है। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कितने की थी, 1 लाख रुपए की, वो माइनस कर देंगे। तो आप इसका कितना आया, 17,40,000 आ रहा था, 17,40,000 में से आप 1 लाख माइनस करेंगे तो 16,40,000, 16,40,000 आपके आ गए। क्या आ गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज़ और माइनस करनी थी, फिक्टिशियस एसेट, मगर क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने एसेट साइड अप्रोच में भी देखा, ये था हमारा एसेट साइड अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो भी वही आया 16,40,000। लायबिलिटी साइड अप्रोच अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो भी 16,40,000 ही आ रहा है। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।